Hey all, this is Dr. Deepa Kamari, and by profession, I am into spirituality field. Now, what is spirituality and what does it include? So, what I do is Vastu consultancy without demolition. Apart from this, also I do is Reiki healing, Karuna Reiki, dowsing, which is known as pendulum dowsing as well. Apart from this, professional tarot card reading, angel therapy, and numerology as well. Also, I am a meditation guide. So today I am going to tell about Reiki. Like Reiki क्या होता है? वो जिसने found किया था, I'll tell a bit history about that person as well. So let's dive into it. Reiki was founded by a person known as Dr. Mikao Usui, and the person who founded Reiki taught this Reiki to more than 2,000 of people. And while he was into this session of Reiki, while he was into the lectures where he was teaching Reiki, he passed away cause of an heart failure. So that day was 9th of March, and this Reiki where he was teaching was at Fukuyama in Japan. So Dr. Mikao Usui was the person who was very much interested into spirituality, and he was very keen, about like उनको बहुत इच्छा थी क्रिस्ट के बारे में जानने के लिए, like who was Jesus Christ, the power, the energy the Jesus has in his hands, how he used to heal people. He was very keen to know all this. So what Dr. Mikao Usui did is he started reading all the scriptures, all the ancient scriptures of Japan, Chinese, Tibetan, what not. Apart from this, उन्होंने even Indian Vedic ancient scriptures भी read किया गया. उसमें से एक श्लोका है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, एंड ये श्लोका इज फ्रॉम अथर्व वेदा. ये श्लोका उन्होंने पढ़ा था जहाँ से उनको बहुत सा इंफॉर्मेशन मिला गया था, एंड द श्लोका इज लाइक फ्रॉम अथर्व वेदा. इट गोज लाइक अयम में हस्तो भगवते अयम में भगवतर अयम में विश्व भेषजो अयम शिवा भीमर्शना. So what does this mean is that ayam means this, me means me, and hasto means hands. So the meaning goes like ayam me hasto, my hands are the hands of Lord. My hands have the power of healing. My hands are so powerful that it can heal any kind of disease that person has. My hands can help a person healing from a negative energy also. And apart from this, its meaning also says that these are the hands that has touched Shiva. So शिवा में इतना पावर होता है वो हम सब जानते हैं. Whatever you'll wish for, you'll get it for sure. लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपने प्रे किया और आपको मिल गया. थोड़ा मेहनत आपके साइड से भी आपको करना पड़ता है. Whatever is there in your destiny, you will get it for sure. अगर एक्सीडेंट होना लिखा है, एक्सीडेंट होगा. If you'll do good karmas, it's not like कि एक्सीडेंट नहीं होगा लेकिन वो हल्का सा चोट लग के वो चला जाएगा. लेकिन एक्सीडेंट होना लिखा है तो it will happen for sure. So same applies for Reiki also. We have two hands, and in Reiki, being a healer, we use two hands for giving Reiki to a person. So what happens here is left hand जो है, we have our capacity, we have so much of power in our left hand so that it can heal a person. भले उसको कोई भी डिजीज हो, इट्स नॉट लाइक कि वो डिजीज से हम बाहर निकालेंगे, नहीं. रेकी हेल्प्स दैट पर्सन टू बी काम, स्टेबल एंड ऑल. सो व्हाट राइट हैंड्स डू? राइट हैंड में देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इन्वॉल्व इन आवर राइट हैंड. सो जब हम दो हाथ यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंड द हीलिंग पावर ऑफ आवर हैंड्स, हम वो पर्सन को हील कर सकते हैं. नाउ हाउ डज दिस वर्क? रेकी में थोड़े चक्रस होते हैं, थोड़े सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम वो पर्सन को हील करते हैं. अभी यहाँ पे आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बट इट्स नॉट लाइक अभी बहुत सा बेसिक मेंटालिटी पब्लिक का होता है माइंडसेट कि रेकी मीन्स इट विल हील ऑल द डिजीजेस. इट्स नॉट लाइक कि वो डिजीज हील करेगा. अगर ऐसा होता तो आज के ज़माने में डॉक्टर्स नहीं के बराबर होते थे. सो रेकी इज़ नॉट द स्टफ विच इज़ यूज टू हील अ कैंसर. वो क्या करता है? रेकी हेल्प्स टू बैलेंस द चक्रस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट. सो ये बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है कि अगर चक्रस बैलेंस्ड है, सो क्या होता है? पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है. दैट पर्सन विल कम आउट ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, वरीज, टेंशंस, एंजाइटी.
वॉट एवर इश्यूज ही हैज। ये सब क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि व्हेन वो पेशेंट को पता चलता है कि अरे आई हैव गॉट कैंसर, सो ऑब्वियस इट्स वेरी ऑब्वियस टू गेट इनटू डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी लेवल बढ़ जाना, इट्स वे टू कॉमन। सो रेकी हेल्प्स दिस ओनली कि वो चक्रस बैलेंस किया जाता है। तो बीइंग अ रेकी हीलर वी नीड टू बैलेंस दोज चक्रस। नाउ व्हाट आर चक्रस? रेकी में बीइंग अ ह्यूमन वी हैव 7 चक्रस विच आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स ऑल्सो। जो 7 चक्रस के कलर्स है, अब विबग्योर तो सब लोगों को पता ही होगा। यूनिवर्स के कलर्स, रेनबो के कलर्स विच इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ऑल दिस 7 चक्रस के कलर्स है। सो चक्रस कहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं? इन आवर बॉडी इनसाइड। वी कैन नॉट सी दोज चक्रस विद आवर नेकेड आईज और नॉर वी कैन हील दोज। फिजिकली भी तो नहीं कर सकते। ये करुणा रेकी विल हेल्प यू इन हीलिंग दोज चक्रस एज वेल। अब ये चक्रस, हम चक्रस के बारे में बात करते हैं। दिस इज नोन एज सहस्त्रार चक्र विच इज ऑल्सो नोन एज क्राउन चक्र and it has violet color. First we'll go through all the chakras and later we'll go through colors and diseases related to Reiki chakras. Okay, so first will come Sahasrara chakra, the crown chakra. This is known as the third eye chakra or the Ajnai chakra. This chakra is known as Vishuddha chakra or throat chakra. So after Vishuddha chakra, heart chakra होता है above navel portion. That chakra is known as solar plexus chakra. Below navel portion, Swadhisthana chakra, and the bottom chakra is known as root chakra or Muladhara chakra. So the color associated to these chakras starting from bottom, like Vibgyor का जो color होता है वही flow से हमारे बॉडी के अंदर भी चक्रस होते हैं जो एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिविटी सराउंडेड। यू नो, आपके आजू बाजू में नेगेटिव पीपल भी होते तो उनका नेगेटिव वाइब्स आपको अफेक्ट ना करें। तो रेकी हेल्प्स ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। रेकी इज नॉट द थिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक एज वेल। सो कमिंग टू कलर्स, अब कलर्स क्या होता है इसमें? स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट इज वायलेट कलर, इंडिगो, देन कम्स ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। डिजीजेज इन द सेंस जो भी बीमारी होती है हमारी, जो अब बीमारी भी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ अ चक्रस, इम्बैलेंस ऑफ अ डाइट एंड ऑल वी गेट डिजीजेज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ऑल दो स्टफ। अगर हम चक्रस बैलेंस करेंगे तो वो हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, स्ट्रेस हो, हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सो डिजीजेज एसोसिएटेड विद चक्रस आर सहस्त्रार चक्र जो है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस लेवल, ये सब जो भी स्ट्रेस रिलेटेड टू पर्सनल वर्क हो, प्रोफेशनल वर्क हो, जो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद सहस्त्रार चक्र। सेकेंड चक्र इज अग्नय चक्र। अब इसके रिलेटेड इश्यूज जो है, जो डिजीजेज हो सकते हैं, दोज डिजीजेज आर लाइक एग्जाम्पल वी कैन से इंट्यूशन पावर अगर लो हो रहा है, सो वी कैन गिव रेकी, वी कैन एक्टिवेट दैट अग्नय चक्र एंड वी कैन गो ऑन विथ एक्टिवेशन सो दैट आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाए। एंड द थर्ड चक्र विच इज नोन एज विशुद्ध चक्र। अब इसके रिलेटेड डिजीजेज जो होते हैं, टॉन्सिल हुआ, सो एनी काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू आवर थ्रोट चक्र विच इज नोन एज विशुद्ध चक्र, उसके रिलेटेड इश्यूज है, अगर वो हम चक्र एक्टिवेट करेंगे तो वो डिजीजेज, वो इश्यू हमारे पास आने का सवाल भी नहीं बनता।